ایم کیو ایم پاکستان نے انتخابی حلقہ بندیوں پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ فروغ نسیم کہتے ہیں سندھ حکومت نے مرضی کی حلقہ بندیاں کی، جہاں متحدہ کے ووٹر زیادہ ہیں وہاں کم حلقے بنائے گئے۔ کوشش کی گئی کہ کراچی والوں کا اپنا میئر بھی نہ آ سکے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن سے معاملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا، ساتھ ہی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان بھی کیا۔ وسیم اختر نے کہا کہ انہیں یہ صورتحال کسی صورت قبول نہیں، بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے سے پہلے اسے درست کیا جانا چاہیے۔ جو طریقہ کار ہے الیکشن کا، اگر اس میں خرابیاں ہوں، ووٹر لسٹ میں خرابیاں ہوں، سینسس کا حوالہ اس میں دیا گیا ہے، ڈیلیمیٹیشن اپنی مرضی کی گئی ہوں، اور جو پاپولر ووٹ ہے وہ اگر نہیں صحیح کینڈیڈیٹ کو ملے، صحیح لوگوں کو تک جائے، تو پھر اس سسٹم کا مضبوط ہونا بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہم ہائی کورٹ گئے، ہائی کورٹ نے ہماری پٹیشن کو رد کیا ہے۔ سپریم کورٹ کا بھی ارادہ ہے ہمارا جانے کا۔ سب سے بڑا مقصد ہمارا یہی ہے کہ یہ جو جیری مینڈرنگ ہوئی ہے اس سارے پروسیس میں، اس کو ہم اجاگر کریں، سامنے لے کے آئیں کہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ متحدہ قومی موومنٹس نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ کل کے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جائے گی۔ گورنمنٹ آف سندھ نے جہاں چاہا، جہاں ایم کیو ایم کے ووٹرز زیادہ تھے، آبادی زیادہ تھی، وہاں کانسٹیٹوئنسیز کم بنا دی زیادہ پاپولیشن میں، اور جہاں کہیں ایم کیو ایم کی مخالف وہ سمجھ رہے تھے کہ ووٹرز ہیں، تو وہاں زیادہ کانسٹیٹوئنسیز بنا دی، جبکہ وہاں پاپولیشن کم ہے۔ تو اس سے بڑی جیری مینڈرنگ کیا ہے؟ فنڈامنٹل ریکویسٹ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، گورنمنٹ آف سندھ سے، سپریم کورٹ ہم جا رہے ہیں کہ یہ جو اتنی بڑی جیری مینڈرنگ ہے، جس میں کراچی کی جو پاپولیشن ہے، جو ووٹرز ہیں، ان کا مینڈیٹ جو ہے فار دا پرپسز آف لوکل گورنمنٹ اسٹیل کیا جا رہا ہے، اس کا تدارک کریں، اس کو کریکٹ کریں۔ گھر میں سے شر نکال لیتی ہے یہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان کا مستقبل سی پیک کی کامیابی پر منحصر ہے۔ گوادر کی بندرگاہ سی پیک میں اہم کردار ادا کرے گی۔ مسلح افواج ہر طرح کے خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ ملکی دفاع کو مضبوط بنانے میں قوم کو اپنی افواج پر فخر ہے۔ خطے میں امن اور ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات پر یقین رکھتے ہیں، امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ وہ پاکستان نیول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کر رہے تھے۔ All our three services, Army, Air Force and Navy, have proved their mettle against threats on our borders. The nation is proud of our armed forces. Pakistan's economic future hinges upon the success of CPEC, with Gwadar Port as its major component. To achieve this end, the need for a strong and vibrant Navy is very important and than ever before. Besides this, our adjoining sea areas are home to multiple security challenges, and I am glad that Pakistan Navy, with its available resources, continues to perform and fulfill our international obligations most effectively. Pakistan believes in peaceful coexistence and wants to promote a friendly neighborhood. We do not harbor any aggressive designs against any country. However, our desire for peace must not be misconstrued. پاکستان نیول اکیڈمی کراچی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب ہوئی۔ 24 کیڈٹس نے کمیشن حاصل کیا، دوست ممالک کے کیڈٹس بھی پاس آؤٹ ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس میں اعزازات تقسیم کیے۔ کراچی میں نیوی کی 170ویں مڈ مینشپ اور 25ویں شارٹ سروس کمیشن کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ 24 کیڈٹس نے کمیشن حاصل کیا۔
कमीशन हासिल करने वालों में 19 का ताल्लुक दोस्त ममालिक से है। पास होने वाले गैर मुल्की कैडेट्स में बहरीन, कतर और फलस्तीन के कैडेट्स भी शामिल हैं। इस मौके पर खिताब में कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी कमोडोर सुहेल अहमद अज़मी का कहना था कि पेशा वराना अमूर के अंजाम दही के लिए हर वक्त तैयार रहना होगा। कैडेट्स के पेशा वराना जिंदगी का आगाज हो रहा है। यकीन है कैडेट्स अपने ममालिक की फौज में महारत साबित करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में एजाज़ात तकसीम किए। कैडेट समिया सज्जाद ने कमांडेंट गोल्ड मेडल हासिल किया। The best all-round short service corps cadet and winner of Commandant Gold Medal is Officer Cadet Sumayya Sajjad. बहरीन से ताल्लुक रखने वाले मिडमैनशिप अदनान मोहम्मद इब्राहिम ने अकेडमी डर्क हासिल की। The winner of Academy's Dirk is Midshipman Adnan Mohammed Ibrahim Al-Badr. वज़ीर-ए-आज़म ने नवाब शाह में आसिफ जरदारी से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। शहबाज शरीफ ने कराची का दौरा भी किया। वज़ीर-ए-आज़म के नवाब शाह एयरपोर्ट पहुँचने पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने उनका इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने जरदारी हाउस में साबिक सदर से उनकी वालिदा की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत किया। इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कराची का दौरा भी किया, जहाँ PF बेस फैसल पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने उनसे मुलाकात की। सिंध के जारी तरक्याती मंसूबों पर बातचीत की गई। MQM वफ़द ने भी शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुत्तहिदा की जानिब से गवर्नर सिंध की जल्द तकर्रुरी और मुआहदे पर अमल दरामद तेज़ करने पर जोर दिया गया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए 1 खरब 63 अरब 70 करोड़ रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया। मिज़ानिया कानून साज असम्बली में वज़ीर ख़जाना अब्दुल माजिद खान ने पेश किया। आइंदा माली साल के बजट में 1 खरब 35 अरब 20 करोड़ रुपए गैर तरक्याती अखराजात, जबकि 28 अरब 50 करोड़ रुपए तरक्याती अखराजात के लिए मुख्तस करने की तजवीज़ है। पेंशन्स के लिए 15% इजाफा मुख्तस किया गया। तरक्याती बजट में सेहत आमा के लिए 1 अरब 80 करोड़, तालीम के लिए 2 अरब 17 करोड़, मवासिलात के लिए 12 अरब रुपए रखे गए हैं। अपोजिशन ने बजट को अदाद शुमार की हेर फेर करार दिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इमरान खान के बयान को झूठ का बलंदा करार दे दिया। उनका कहना था नैब में लाई गई 80% तरामीम साबिक दौरे हुकूमत की थी। एक बयान में वफाकी वज़ीर कानून ने कहा, मुल्क को मौशी बहरान में धकेलने में नैब और इमरान खान जिम्मेदार हैं। नैब में 80% तरामीम इमरान खान ने अपने दौरे इक़्तिदार में ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज की थी। मौजूदा हुकूमत ने इन तरामीम को पार्लियामेंट में ले जाकर एक्ट यानी कानून की शक्ल दी। इमरान खान इस मामले पर अदालत से रजू कर चुके हैं, इसलिए सियासी बयानबाजी से परहेज करें और फैसला अदालत पर छोड़ें। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि कोई आलमी साजिश नहीं हुई। इमरान खान के लिए पैगाम है कि PTI सरकार फजल रहमान ने गिराई। इमरान खान हुकूमत कायम रहती तो शायद आज हम दुआए खैर कर रहे होते। 2018 में मुसल्लत क़यादत का मकसद CPAC रोकना था। अब समझ में आ गया होगा कि तमाम सियासी क़ुव्वतों का एक जगह इकट्ठा होना क्यों ज़रूरी था। वो इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब कर रहे थे। ऐसी क़यादत को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया कि जिसका हदफ चीन की तिजारती रास्ते को रोकना था। CPAC एक सड़क का नाम नहीं है, एक शाहराह का नाम नहीं है, एक पैकेज का नाम है। तबाह बर्बाद कर दिया उन्होंने हमारे इस पूरे मंसूबे को। अब ये अगर सब इकट्ठे ना होते, एक कौमी वहदत वजूद में ना आती, हम इस एजेंडे के खिलाफ जिहाद न करते, और अगर मज़ीद, मैं सालों की बात नहीं कहता, चंद महीने भी मज़ीद ये हुकूमत बरकरार रहती तो शायद आज आप मुल्क को दुआए खैर कह रहे हो। अब आपको समझ में आ गया होगा कि तमाम सियासी क़ुव्वतों का एक जगह इकट्ठा होना क्यों ज़रूरी था। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि PTI के दौरे हुकूमत में PTV पर क्रिकेट राइट्स के नाम पर डाका डाला गया। बोली में मनपसंद कंपनी को नवाजा गया। PTV के हुकूक किसी और चैनल को देने का बाकायदा मंसूबा बनाया गया। PTI ने जालसाजी के साथ अपने पसंदीदा चैनल के नंबर्स भी बढ़ाए।
फवाद चौधरी ने मुआशी नीलामी में सहूलत कारी की। FIA को रिकॉर्ड भेज दिया, मुलजिम को कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। 2022 अप्रैल में जब हमारी हुकूमत आई तो ये सबको मालूम था कि PTV स्पोर्ट्स ने और PTV ने बतौर अदारा एक अग्रीमेंट साइन किया क्रिकेट राइट्स के लिए। मेरे पास वो तमाम कागजात मौजूद थे और वो तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद थी जो ये डील हुई PTV की ग्रुप M और ARY के साथ। पाकिस्तान टेलीविज़न के पास, स्पोर्ट्स चैनल के पास ये राइट्स थे और ट्रेडिशनली हमेशा एक्वायर भी PTV करता है और डिसेमिनेट भी PTV करता है। एक दिन में बिड्स को खोल दिया गया। 27 को ये बिड आई, सब लास्ट डेट्स थी। 28 अगस्त को 2021 को ये बिड्स खोल दी गई। ग्रुप M ARY की बिड आई, ब्रिट्स की बिड आई PTV के पास, ब्लिट्स की, टावर स्पोर्ट्स की बिड आई और ट्रेड क्रॉनिकल की बिड आई। PTV की ब्लिट्स की वैल्यूएशन कमेटी ने ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स को 300 टोटल नंबर में से 182 नंबर दिए। दूसरे नंबर के ऊपर ग्रुप M ARY को आपने 167 नंबर दिए 300 में से। MD को नोट पुट होता है कि हमारा बच्चा तो हो गया फेल, पर्चा भी हमने बनाया, अब बच्चे को कराना है पास। उस मंसूबे के तहत तो जो M ग्रुप ARY के साथ जो सेकंड जिसको नंबर मिले हैं, जो बच्चा उस बिड में फेल हुआ है, उसके लिए एक नोट पुट अप होता है और कहा जाता है कि कमेटी ये कह रही है कि हमने इन दोनों को सिलेक्ट किया और इनके साथ हम रीनिगोशिएशन, फर्दर निगोशिएशन में जाना चाहते हैं, जबकि कमेटी ने ये नहीं कहा था। कमेटी ने उन तमाम सिग्नेचर्स के साथ कहा था कि इस कंपनी को मैक्सिमम नंबर मिल चुके हैं, जिसका नाम ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स है और जिसके साथ ऑलरेडी PTV तजर्बा कर चुका है, पार्टनरशिप हो चुकी थी। मंसूबे को, बच्चे को पास कराने के लिए रीनिगोशिएशन की जाती है और रीनिगोशिएशन के साथ रीमार्किंग की जाती है, क्राइटेरिया बदला जाता है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस बदली जाती है, टोटल नंबर बदले जाते हैं। 300 टोटल को 350 कर दिया जाता है। 1 सितंबर को दोनों कमेटियों को दोनों पार्टियों से मिला जाता है, उनको एक क्राइटेरिया दिया जाता है और दोनों क्राइटेरिया रीनिगोशिएशन के ब्लिट्स के फ़र्क हैं और ग्रुप M और ARY को फ़र्क रीनिगोशिएशन क्राइटेरिया दिया जाता है। अब 350 में से वही कमेटी एवैल्यूएशन की, उसने ARY को 250 नंबर दे दिए। 6 सितंबर को डिसाइड कर लिया जाता है कि हमने M ग्रुप ARY के साथ 3 साल का अग्रीमेंट कर लेना है। तो जो EOI में कंडीशन थी कि वो सैटेलाइट ब्रॉडकास्टर होना चाहिए और पैमरा के अंदर 2 महीने की टेस्ट ट्रांसमिशन होनी चाहिए, तो 2 दिन के बाद उसको आपने दे दिया ऐसा अग्रीमेंट जो कि PTV का कत्ल, PTV पर डाका और PTV की इमारत जिसको नीलाम करने का मंसूबा था, उसकी माशी नीलामी कर दिया। इस गैर कानूनी PTV के कत्ल और PTV की माशी डाका जो डाला गया, उसको फिर प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट के अंदर अपने वकील लगाकर इस गैर कानूनी डील को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई। सहूलतकारी में फवाद चौधरी साहब ने कंप्लीट प्रोटेक्शन दी कोर्ट में और ये तमाम जो सहूलतकार बने हैं, मैं ये आपके सामने अनाउंस करना चाहती हूँ कि इस डील को टर्मिनेट करने के लिए शो कॉज दे दिया गया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि आवाम को कभी रोटी, कपड़ा और मकान तो कभी तब्दीली के नाम पर धोखा दिया गया। मुल्क में सही मायनों में एहतसाब हो तो तमाम हुक्मरान जेलों में होंगे। वो ट्रेन मार्च के दौरान मुल्तान में खिताब कर रहे थे। आपको रोटी, कपड़ा और मकान के नाम पर धोखा दिया गया, आपको तब्दीली के नाम पर धोखा दिया गया। 75 साल से उनकी हुक्मरानी है, इन चिरागों में अब तेल नहीं है। ये अंधेरे तो दे सकते हैं, ये रोशनी नहीं दे सकती, इसलिए अब इनके गिरबानों में हाथ डालने का वक्त आया है, इनके साथ हिसाब किताब करने का वक्त आया है। अगर सही मानों में एहतसाब हुआ, आप देखेंगे ये सब के सब लोग ये जेलों में होंगे। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अमूर मुमलिकत चलाना इम्पोर्टेड हुक्मरानों के बस में नहीं,
तहरीक इंसाफ ने अपनी कारकर्दगी की बदौलत मईशत को बतदरीज मजबूत किया। साबिक वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि हमारे दौर में मईशत मजबूत हो रही थी, बैरूनी मुदाखलत की वजह से तरक्की का पहिया रुक गया। मुल्क में सियासी अदम तवाज़ुन की वजह से मईशत बतदरीज ज़वाल पजीर है। मौजूदा हुकूमत हक़ाइक़ से तवज्जो हटा रही है। PP और नून लीग करप्शन के खात्मे को अहमियत नहीं देते। इम्पोर्टेड हुक्मरानों की ख्वाहिश है कि 1.5 साल हुकूमत की जाए। अवाम के सामने साजिश आया हो गई, इनका बयानिया कबूल नहीं किया जा रहा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से यूरोपीय यूनियन GSP+ मॉनिटरिंग मिशन के प्रिंसिपल की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। GSP+ बारे मुख्तलिफ कन्वेंशन पर अमल दरामद के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मिशन ने वज़ीर आला पंजाब और उनकी टीम पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से यूरोपीय यूनियन GSP+ मॉनिटरिंग मिशन के प्रिंसिपल ट्रेड एडवाइज़र गोस होटन की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। मिशन के प्रिंसिपल ट्रेड एडवाइज़र गोस होटन ने बैनुल-अक़वामी कन्वेंशंस पर अमल दरामद के सिलसिले में पंजाब हुकूमत की काविशों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब ने GSP+ बारे मुख्तलिफ कन्वेंशंस पर अमल दरामद के हवाले से हुकूमती इक़दामात से वफ़द को आगाह किया। हमजा शहबाज ने कहा कि ख़वातीन और अक़लियती बरादरियों को मसावी हुकूक की फ़राहमी हमारी हुकूमत की तरजीह है। नए बल्दियाती निज़ाम का बिल पंजाब असम्बली से मंजूर हो चुका है। पंजाब में ख़वातीन और अक़लियतों को बाइख्तियार बनाने के लिए हमारे साबका दौर में ज़रूरी कानून साजी की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे वज़ारत आला में पंजाब हुकूमत ने ईंटों के भट्टों से चाइल्ड लेबर का खात्मा किया। 85,000 बच्चों को स्कूलों में दाखिल कराया। चाइल्ड लेबर के खिलाफ इसी अज़्म के साथ काम करेंगे जिस तरह हमारी हुकूमत ने साबिक दौर में किया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने मजीद बताया कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के चैलेंज का बहादुरी के साथ सामना किया है। यूरोपीय यूनियन GSP+ मॉनिटरिंग मिशन के प्रिंसिपल ने कहा कि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है और जो उनकी जानिब से प्लानिंग की जा रही है उससे मामलात में मजीद बेहतरी आएगी।